Okay, so today we'll discuss the nomenclature of the organic compounds having the functional group. देखिए सेविंग कर दीजिए ना So compounds with functional group. So what is the functional group? So basically functional group, they are the site of reaction in the whole compound. So functional group are the atoms or group of atoms which determine the major properties of the compound. एंड जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसी फंक्शनल ग्रुप के ऊपर होती है. So functional group is nothing but basically it is a site of chemical reaction. Site of chemical reaction. Okay. Okay, now rule 1. यदि हमारे मॉलिक्यूल में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हम लोग उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज करते हैं. जैसे लेटर से COOH प्रेजेंट है तो उसके लिए हम लोग क्या 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं? ओइक एसिड. इसका 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं हम लोग ओइक एसिड. तो हमने पढ़ा था जो 5 कंपोनेंट थे किसी भी नेम के, उसमें मैंने पढ़ा था कि 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है. तो यदि हमारे कंपाउंड में केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए हम लोग 2 डिग्री सफिक्स यूज कर लेंगे एंड बाकी सारे रूल वही रहेंगे. लेकिन सपोज एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तब हमको उन फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी असाइन करना पड़ता है और उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होता है उसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं एंड उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का यूज किया जाता है. एंड जो बाकी फंक्शनल ग्रुप होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड इस सब्स्टिट्यूएंट को कंसिडर करेंगे तो हमको पता है हम सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या यूज करते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं. तो उनके लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज कर लेते हैं. तो पॉइंट तो इस पॉइंट को लिख लेना. राइट डाउन for naming monofunctional group containing compound. For naming monofunctional group containing compound. For naming monofunctional group containing compound, we use specific 2 degree suffix. We use specific 2 degree suffix such as oic acid for carboxylic acid, such as oic acid for carboxylic acid. Okay, I am repeating once. For naming monofunctional group containing compound, we use specific 2 degree suffix such as oic acid for carboxylic acid. मैं उसमें कंटिन्यू करना. But for polyfunctional group containing compound, but for polyfunctional group containing compound, for polyfunctional group containing compounds, we have to consider priority of functional groups. We have to consider priority of functional groups. But for polyfunctional group containing compounds, we have to consider priority of functional group. We have to consider priority of functional group. And write down for higher priority functional group.
for higher priority functional group we use 2° suffix. For higher priority functional group we use 2° suffix. And for lower priority ब्रैकेट में लिख लेना being substituent, ब्रैकेट में लिख लेना being substituent, we use 2° prefix. We use 2° prefix. Hello. Okay, yes. Now see, for example, Hello? I have. Yes, बताइए. Hello. Hello. सर आप आवाज क्लियर आ रहा है? Yes, yes, coming. हाँ नहीं, आपने ये जो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था कि फॉर नेमिंग फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट, सर वो नेमिंग और फंक्शनल के बीच में कुछ था क्या? मोनो. ओके. मोनो. अभी मोनो मतलब एक ही Yes, function one, only one, right? अच्छा, और पॉली मल्टीपल. ओके. फॉर एग्जाम्पल देखो, लेट अस से हमारे पास H3C डबल बॉन्ड OOH एंड OH. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और अल्कोहल भी है. तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी हाई होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे एंड अल्कोहल आपका ये हो जाएगा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप. ओके, नाउ इसको नंबर 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 4. यस, मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ. यस जस्ट आई मीन लिख लिया लेकिन समझ नहीं आया. रीड पढ़ लेता हूँ. Functional group containing we use a suffix such as OH acid from approximation multiple polyfunctional group containing compound. We have to consider priority of functional group. Priority functional group is substitute we use 2D prefix. हाँ yes sir. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो COH है एंड OH है, देयर आर 2 फंक्शनल ग्रुप. COH का प्रायोरिटी हाई होता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल कंसीडर करेंगे. दिस विल बी यूज्ड एज सब्स्टिट्यूएंट. तो यहाँ से नंबर 1 2 3 4 करेंगे. अब नाम क्या हो जाएगा इसका? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड. राइट. नाउ विल मेक अ टेबल जिसमें हम लोग फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे. जब उनको हम लोग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का यूज करेंगे तब क्या सफिक्स यूज होगा और उनके लिए 2° प्रीफिक्स क्या यूज होगा. ओके, सो विल मेक वन टेबल. राइट डाउन हियर serial number, then group, then common name, and then 2° prefix, and then 2° suffix. ओके, तो ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ ग्रुप को. आई एम राइटिंग डिसेंडिंग ऑर्डर. तो नंबर 1 पे हो जाएगा COH. COH द हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप. इसका कॉमन नेम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड. इसके लिए 2° प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं? कार्बोक्सी.
and 2 degree suffix oic acid. oic acid. नंबर 2 पे आता है आपका सल्फोनिक एसिड. कॉमन नेम इज सल्फोनिक एसिड. इसके लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं सल्फो, and 2 degree suffix will be sulfonic acid only. सल्फोनिक एसिड. नंबर 3 पे आता है एनहाइड्राइड, COO. तो इसका स्ट्रक्चर आपको बता चुका हूँ. ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CO लीजिए, राइट. So this is nothing but acid anhydride. ठीक है ना. इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता है, एंड 2 डिग्री सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड. Fourth is ester. Ester is basically this C double bond OO. इस पर्टिकुलर ग्रुप को एस्टर बोलते हैं. इधर भी C लगा होगा, तो दिस इज एस्टर. इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज किया जाता है एल्कोक्सी कार्बोनिल. एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्कोनोइल ऑक्सी और एल्केनोइल ऑक्सी. तो बेसिकली होता क्या है, जब ये यहाँ से जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड O के साइड से जुड़ा होता है पेरेंट चेन से, तब हम लोग यूज करते हैं एल्केनोइल ऑक्सी. यदि O से जुड़ा होता है, सॉरी, यदि C से जुड़ा होता है तो हम लोग यूज करते हैं एल्कोक्सी कार्बोनिल. O से जुड़ा होता है तो हम लोग यूज करते हैं एल्कोनोइल ऑक्सी. एनीवे हम लोग एग्जांपल देखें तो समझ आ जाएगा आपको. इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं O8. After ester we have acid halide, COX, C double bond O and X. This is nothing but acid halide. इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलो कार्बोनिल. हेलो कार्बोनिल एंड 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं ओइल हैलाइड. ओइल हैलाइड. ठीक है. नेक्स्ट है आपका CONH2. इसका कॉमन नेम होता है अमाइड. इसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं कार्बामोइल. कार्बामोइल. इसका 2 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं अमाइड. कॉपी कर लो जल्दी से.
Okay. Now let us see some more groups. 7th is CN. कॉमन नेम क्या होता है इसका? नाइट्राइल. 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? साइन, साइनो. 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है? नाइट्राइल. नेक्स्ट इज योर एल्डिहाइड. कॉमन नेम इज एल्डिहाइड. 2 डिग्री प्रीफिक्स इज फॉर्माइल और एल्डो और ऑक्सो. and 2 degree suffix is al. Next one is ketone. Common name is ketone. 2 degree prefix will be oxo and 2 degree suffix is on. Next one is OH. Common name is alcohol. 2 degree prefix will be hydroxy. Hydroxy. And 2 degree suffix is ol. And last is NH2. Name is amine. 2 degree prefix is amino and 2 degree suffix is amine. कॉपी कर लीजिए. Okay, now we'll see name of some of the compounds containing only monofunctional group. Suppose I have this particular compound. यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3. ये क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड. करेक्ट? प्रोपेनोइक एसिड, राइट? Suppose I have CH3. यहाँ पे आपका है SO3H. नंबरिंग करेंगे इधर से क्योंकि आपके फंक्शनल ग्रुप का कौन नंबर मिलना चाहिए. तो क्या हो जाएगा? कंटेन 2 सल्फोनिक एसिड. नेक्स्ट सपोज आई हैव so this will be 1 2 3 propane amide. Next suppose I have 1 2 3 propanoyl chloride. Propanoyl chloride. बट हम लोग इसके लिए ऑयल क्लोराइड यूज करते हैं, राइट? नेक्स्ट सपोज आई हैव 1 2 3 प्रोपे. अच्छा, प्रोपेनॉल के साथ लिख चुका हूँ एक बार. प्रोपेनॉल एसिड.
नेक्स्ट सपोज आई हैव साइन एज हो गया 1 2 3, दिस विल प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। नेक्स्ट सपोज आई हैव double bond OH 1 2 3, this will be propanol. Next suppose I have one two three four, so that will be butane 2 amine. क्लियर? तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तब तक कोई दिक्कत ही नहीं, सीधा एंड में सफिक्स लगाओ बस हो गया, कॉपी कर लो इसको। ओके, so this is clear. Okay, now next point write down. Now there are some functional group like suppose I have anhydride. तो जो एनहाइड्राइड है वो दो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनता है। सपोज आई हैव CH3 डबल बॉन्ड O OH एंड HO डबल बॉन्ड O। तो इस तरीके से दो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन से बनता है एनहाइड्राइड। एक कार्बोक्सिलिक एसिड का OH दूसरे का H, और ये पानी बन के बाहर निकल जाता है और इस तरीके से एनहाइड्राइड बन गया। Double bond O, double bond O, CH3. There are some functional groups which are formed by the reaction between two same or different functional groups. Okay, so write down. Some functional groups are formed. Some functional groups are formed by chemical reaction of two similar or different functional groups. Some functional groups are formed by chemical reaction of two similar or different functional groups. Okay. यस सर। जैसे एग्जांपल तुमने ऊपर लिखा दिया, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इन दोनों के रिएक्शन से क्या बन गया ये एनहाइड्राइड। तो माइंड इट, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। नेक्स्ट लेटर से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ। तो इसका OH, अल्कोहल का H, पानी बन के बाहर निकल जाता है और ये एस्टर बन जाता है। We'll get ester. So this is carboxylic acid and this is alcohol. उनके रिएक्शन से क्या मिल रहा है मुझे? एस्टर मिल रहा है, राइट। सिमिलरली यदि मैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा देता हूँ 1 डिग्री अमीन के साथ, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा देता हूँ 1 डिग्री अमीन के साथ, तो अमीन का H, एसिड का OH, तो भी पानी बन के बाहर निकल जाता है एंड वी गेट अमाइड।
तो इस तरीके से मुझे ये 2 डिग्री अमाइड मिल गया। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड and this is primary amine। तो उनके रिएक्शन से मुझे क्या मिल गया, ये 2 डिग्री अमाइड मिल गया। तो अमाइड मिलता है अमीन और एसिड के रिएक्शन से, एस्टर मिलता है अल्कोहल और एसिड के रिएक्शन से, एनहाइड्राइड मिलता है एसिड और एसिड के रिएक्शन से, राइट। कुछ और ग्रुप्स लिखिए। थर्ड वाला करो। लेट्स जस्ट से आई हैव 2 अल्कोहल का रिएक्शन कराता हूँ। ठीक है, तो एक अल्कोहल का OH, दूसरे का H, ये पानी बन के बाहर निकाल दो। जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईथर। ये क्या बन गया, ईथर। तो 2 अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है ईथर। ऐसे ही यदि मैं 2 प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करवा देता हूँ तो उससे सेकेंडरी अमीन मिल जाता है। 2 प्राइमरी अमीन को रिएक्ट करा दो तो उससे मुझे सेकेंडरी अमीन मिल जाएगा। तो एक का NH2, दूसरे का H, तो अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है एंड वी गेट 2 डिग्री अमीन, सॉरी तो ये प्राइमरी अमीन था, ये भी प्राइमरी अमीन था, और उनके रिएक्शन से क्या बन गया, सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन। ओके, नेक्स्ट चीज में प्राइमरी अमीन का रिएक्शन करा देता हूँ सेकेंडरी अमीन के साथ, तो मुझे टर्सरी अमीन मिल जाता है। ये प्राइमरी अमीन है, इसका रिएक्शन करा देता हूँ मैं सेकेंडरी अमीन के साथ। तो इसका NH2, इसका H, अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है and we'll get tertiary amine। This is primary amine। ऐसा Yes। लाइक इधर सेकेंडरी अमाइन के ऊपर क्या लिखा, समझ नहीं, मैं सेकेंडरी अमाइन वाला पार्ट में समझ नहीं पाया। ये सेकेंडरी अमीन है ना, देखो ना, नाइट्रोजन से 2 कनेक्टेड हैं, 2 इथाइल कनेक्टेड है, बोला नाइट्रोजन से केवल एक ही हाइड्रोजन कनेक्टेड हो और 2 एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन से एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तीनों के तीनों एल्काइल ग्रुप, ये क्या बन गया, टर्शियरी अमीन। ये सब लिखाया था आपको मैं। वो याद है। ओके, नाउ लेट्स से मुझे एनहाइड्राइड का नेमिंग करना है। सबसे पहले हम देखेंगे नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड। तो बेसिकली एनहाइड्राइड हमारे 2 टाइप के होते हैं, दे आर ऑफ 2 टाइप, दे आर ऑफ 2 टाइप्स। वो 2 टाइप कौन होते हैं, लेट्स से ऐसा एनहाइड्राइड जो कि दोनों सेम एसिड से बना है, एंड सेकंड एनहाइड्राइड जो कि 2 डिफरेंट एसिड से बना है। तो सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, symmetrical anhydride that is formed from two same carboxylic acid। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे करते हैं, इट इज नेम्ड बाय
replacing oic acid of carboxylic acid, oic acid of acid by oic anhydride, by oic anhydride. For example, let us say I have CH3 CH3 डबल बॉन्ड O यहाँ पे है, डबल बॉन्ड O यहाँ पे है। अब देखिए ये सिमेट्रिकल है कि नहीं, तो ये दो प्रोपेनोइक एसिड से मिलके बना है। तो इधर भी 3 कार्बन है, इधर भी 3 कार्बन है, तो इट इज कंसिस्ट फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ओके, कॉपी कर लो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज asymmetrical anhydride. Asymmetrical. So anhydride which is made from 2 different carboxylic acid, उसको बोलते हैं asymmetrical. Made from 2 different carboxylic acid. ठीक है, तो सिंस ये 2 डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलकर बना है, इसीलिए इसका नेमिंग करते समय मुझे दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मेंशन करना पड़ेगा। सो दे आर नेम्ड एज alkanoic, 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 anhydride, anhydride, taking alphabetical, taking alphabetization of acid, alphabetization of acid. For example, suppose I have H3C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। अब देखिए इधर में 3 कार्बन है, 1 2 3, इधर में 2 कार्बन है, 1 2। इसका मतलब ये प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड से मिलके बना है। तो यहाँ पे आपको दोनों का मेंशन करना पड़ेगा। प्रोपेनोइक इथेनोइक में अल्फाबेटिकली इथेनोइक पहले आता है, तो हम लोग इथेनोइक को पहले लिखेंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। गॉट द पॉइंट, कॉपी कर लीजिए। So next we will see the nomenclature of ester. अब एस्टर में देखो 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है। तो ये पार्ट मेरा अल्कोहल से आता है, राइट, और ये पार्ट हमारा एसिड से आता है। अल्कोहल वाले पार्ट को एज ए एल्काइल ट्रीट करेंगे हम लोग। अल्कोहलिक पार्ट इज रिटन फर्स्ट एज एल्काइल एंड इसको एल्केनोएट लिख देते हैं। ओके, तो एक बार लिख लेना इसको। Alcoholic part is written first as alkyl. Alcoholic part is written first as alkyl. वेट सर, मैं ये लिख लेता हूँ पहले। Yes, yes, no problem.
sir. Okay, now see, write down alcoholic part is written first as alkyl, followed by ester part as alkanoate. Alcoholic part is written first as alkyl, followed by ester part as alkanoate. For example, let us say I have H3C देखो ये वाला अल्कोहलिक पार्ट है, ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, इथाइल। इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट, जो भी अल्कोहलिक पार्ट हो उसको आज एल्काइल की तरह ट्रीट करना है, एंड देन ये आपका मेन चेन हो जाता है। उसमें जितने भी कार्बन हो उसके एंड में सफिक्स OH लगा देना है। अगर मुझे पता है एस्टर में सफिक्स क्या लगाते हैं, OH लगाते हैं, करेक्ट? बात है भाई? यस सर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेमिंग ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड। बिकॉज 1 डिग्री का तो सिंपल होता है, 1 डिग्री मतलब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइड, ठीक है। पहले रूल लिख लेना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको, राइट? नेम एज सर एमाइड NH2 था ना? नो नो, NH वो अमीन होता है, अच्छा वो अमाइड ये होता है, ये होता है अमाइड। हाँ याद आ गया, यस सर। राइट डाउन 2 डिग्री अमाइड इज नेम्ड एज 2 डिग्री अमाइड इज नेम्ड एज N alkyl alkane amide, N alkyl alkane amide, N alkyl alkane amide। तो इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे आई है H3C NHCH3, यहाँ पे जो नाइट्रोजन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है उसको लिखना है यहाँ पे N एल्काइल, एंड देन ये आपका मेन चेन हो जाता है, दिस इज मेन चेन, सो एल्केन, और एंड में सफिक्स क्या लगता है, अमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए दिस इज एथाइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 1 2, तो एथाइल इथेन, और सफिक्स क्या लग जाएगा, अमाइड, राइट? बात समझ आई? और यहाँ पे N लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये जो एथाइल ग्रुप लगा हुआ है वो नाइट्रोजन पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसलिए N यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, इससे कोई कंफ्यूजन ना हो। इसका मतलब है ये जो इथाइल है ये नाइट्रोजन के ऊपर का सब्स्टिट्यूएंट है, इसके ऊपर का नहीं है। बिकॉज हो सकता है इस पेरेंट चेन में भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट हो ना, जब हम N इथाइल लिख देते हैं इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये इथाइल है वो नाइट्रोजन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, ये पेरेंट चेन का सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। गॉट द पॉइंट? नहीं वो ठीक है, लाइक ये तो है कि 2 डिग्री आपने लिखा है कि 2 डिग्री अमाइड इज नेम्ड एज एन एल्काइल। एन एल्काइल देखो ना, N इथाइल, फिर एल्केन अमाइड, इथेन अमाइड किया कि नहीं? अच्छा मतलब एल्काइल ये सब डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन। हाँ ऑब्वियसली, एल्काइल तो जनरल टर्म है ना। ओ माय हाँ गॉड, ओके, कैसे खतरनाक खतरनाक डाउट आ रहे हैं आपको। ये मेरे को लगा पूरा यही लिख देना। पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है कुछ नहीं आपके सर, आप पूछ सकते हैं कुछ योर भी। लेवल ऑफ डाउट इज शोइंग दैट आप बहुत भयंकर पढ़ाई कर रहे हैं। ओके चलिए, अभी लेटर से मुझे 3 डिग्री इसीलिए अमाइड मैं को, डाउट नहीं पूछता।
No, you can ask. There is no problem. But नहीं पता है बट छोड़ो. I did not say you. Why did you ask the doubt? I am telling that पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं हम. नहीं उसका नहीं, मेरे को ये चीज कब हर्ट होता है जब इतना पढ़ के जाओ फिर कोई बोलता है पढ़ नहीं रहे हो, तो वो हर्ट कर जाता है. How to take it positively और पढ़ाई करो, right? Anyway, so now write down. Now tertiary amide are named as NN dialkyl alkane amide. Tertiary amide are named as N, N dialkyl alkane amide. फिर आप लिख रहे हैं क्या? यस लिखा ना मैंने, इधर देखो. अच्छा हाँ ऊपर लिख. NN dialkyl alkane amide. For amide derived from same amine. For amide derived from same amine. यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है, इसका मतलब ये है यदि दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है तो हम लोग NN डाई एल्काइल लिख देते हैं. जैसे हम लोग पहले करते थे ना, यदि दो सब्स्टिट्यूएंट सेम होते थे तो क्या कर देते थे, डाई एल्काइल कर देते थे ना, उसका पोजीशन देने के बाद डाई एल्काइल लिख देते थे. ऐसे यहाँ पे भी यदि दोनों नाइट्रोजन के ऊपर जो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं यदि वो दोनों ही सेम है तो हम लोग N, N डाई एल्काइल लिख देते हैं. और यदि वो दो एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हुए तो आपको दो बार लिखना पड़ेगा N एल्काइल. जो अल्फाबेटिकली फर्स्ट आएगा उसको पहले लिखना पड़ेगा, जो अल्फाबेटिकली बाद में आएगा उसको बाद में लिखना पड़ेगा. ये पहले जैसे है, कुछ अलग थोड़ी ना यहाँ पे. तो क्या लिखा, 3 degree amide are named as NN dialkyl alkane amide for amide derived from same amine. For amide derived from same amine and N alkyl alkane amide for amide derived from two different amines. For amide derived from two different amines. Then yes sir. For example, C. Suppose I have H3C double bond O and CH3 CH. अब यहाँ पे देखो इधर ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो क्या लिख देंगे हम लोग N, N डाई इथाइल. यहाँ पे कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो इथेनामाइड. Getting my point? Next let us see, I have CH3 and CH3. थोड़ा वेट. एक बार देख लो, कॉपी कर लेना. You just see then you can copy. देखो यहाँ पे इथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, तो दोनों अलग अलग हैं, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो. सबसे पहले आएगा N इथाइल, देन N मिथाइल, एंड देन यहाँ पे कार्बन कितने पेरेंट चेन में, दो कार्बन, क्या हो जाएगा इथेन अमाइड. राइट, गॉट द पॉइंट और नॉट? समझ आ गया? चलो अभी कॉपी कर लो. अभी हम लोग 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन का नोमेनक्लेचर करेंगे. 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन. जैसे अमाइड का करते हैं वैसे अमीन का भी करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अल्काइल ग्रुप विद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज पेरेंट चेन. जैसे बहुत सारे अल्काइल ग्रुप होंगे,
यदि 2 डिग्री अमीन है इसका मतलब नाइट्रोजन के ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप होंगे। 2 डिग्री अमीन का डेफिनेशन क्या होता है? 2 एल्काइल होंगे और 1 हाइड्रोजन होगा। तो इन दोनों एल्काइल में से जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको हम लोग पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। बात तो पॉइंट लॉन्गेस्ट वाले कंसीडर करेंगे पेरेंट चेन। तो पहला पॉइंट वही लिख लीजिए, एल्काइल ग्रुप with the longest carbon chain is parent chain. Alkyl group with the longest carbon chain is parent chain. ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे 2 डिग्री में 2 एल्काइल होते हैं, 3 डिग्री में तो 3 एल्काइल होते हैं। तो इन तीनों में से आप लॉन्गेस्ट वाले को सेलेक्ट कर लो पेरेंट चेन। बचे हुए दोनों क्या हो जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे बचा हुआ जैसे ये पेरेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। बात तो पॉइंट पॉइंट वही लिखे ना, अदर एल्काइल ग्रुप्स attached to nitrogen, other alkyl groups attached to nitrogen are considered substituent. Other alkyl groups attached to nitrogen are considered substituent on nitrogen. Are considered substituent on nitrogen. Are considered as substituent on nitrogen. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ऑन नाइट्रोजन का मीनिंग क्या है? खाली सब्स्टिट्यूएंट क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ऐसा इसलिए है, देखो हमारा जो पेरेंट चेन है इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं ना। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये नाइट्रोजन के ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इधर भी तो पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट के पीछे एन लगा के इसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं। एन लगाने से पता चल जाता है भाई ये तो नाइट्रोजन के ऊपर वाला सब्स्टिट्यूएंट है। जिसमें एन नहीं लगा है तो पता चल जाता है वो पेरेंट चेन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। और गेटिंग माय पॉइंट और नो? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी लिख लेना, 2 डिग्री अमीन आर नेम्ड एज 2 डिग्री अमीन आर नेम्ड एज एन एल्काइल एल्केन अमीन। एन एल्काइल एल्केन अमीन। एन एल्काइल एल्केन अमीन। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैव CH3 एंड CH3। देखिए यहाँ पे इसमें 3 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मतलब ये वाला क्या बन गया आपका? पेरेंट चेन बन गया। और ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, नाम क्या हो जाएगा? एन इथाइल प्रोपेन अमीन। राइट, एन इथाइल प्रोपेन अमीन, करेक्ट। हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। तो पॉइंट यस सर। नेक्स्ट लिख लेना, 3 डिग्री कॉपी अमीन। कर रहा हूँ। कॉपी कर लीजिए। अच्छा हेलो सर, यस, ये जो डायग्राम अभी जो बताया ना, एग्जांपल देके समझाया, यस यस। वहां पे ऐसा भी तो लिख सकते थे कि एन प्रोपेन। नहीं नहीं नहीं, अल्फाबेटिकली पहले आता है। नहीं अल्फाबेटिकली नहीं भाई, जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको पेरेंट एज्यूम करना है। तो लॉन्गेस्ट ये वाला, तो ये पेरेंट बन गया।
और ये सब्स्टिट्यूएंट हमारे पहला पॉइंट यही है। हम्म एन इथाइल, ओके सर। तो नेक्स्ट लिखना 3 डिग्री अमीन्स आर नेम्ड एज NN dialkyl alkane amine N, N dialkyl alkane amine if both alkyl are same, यदि ये दोनों alkyl सेम है तो NN dialkyl alkane amine लिख देते हैं। if both alkyl are same, and N alkyl alkane amine in alphabetical order If both order alkyl are same, yes, if both alkyl are same, and then N alkyl alkane amine in alphabetical order and N alkyl alkane amine in alphabetical order if both alkyl are different. If both alkyl are different. For example, let us say I have CH3 and CH3 and CH3। अब यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 कार्बन है, इधर में 2 कार्बन है, इधर में एक ही कार्बन है। ये तो बन गया मेरा पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन को मानते हैं पेरेंट। दो हो गए सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। पहले आएगा इथाइल, तो एन इथाइल, देन एन मिथाइल एंड देन प्रोपेन अमीन, राइट। तो एन लगाना जरूरी है बिकॉज खाली इथाइल मिथाइल लिख देंगे तो उससे मतलब होगा कि वो सब्स्टिट्यूएंट हमारे कहाँ हैं, पेरेंट चेन वाले हैं। तो इसलिए इन सब्स्टिट्यूएंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए एन लगा दिया जाता है। गॉट द पॉइंट? नहीं सर। अरे भाई ये देखो ना, मैंने बोला कि जो लॉन्गेस्ट 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, 3 डिग्री में आपके 3 एल्काइल होंगे कि नहीं? उसमें से जिस एल्काइल में नंबर ऑफ कार्बन आइटम से ज्यादा है उसको पेरेंट चेन कंसीडर करते हैं। पेरेंट चेन एज्यूम ये हो गया पेरेंट, और बचे हुए दो हो गए सब्स्टिट्यूएंट। एन तो इथाइल, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। समझ गया सर। कॉपी कर लिया? चलिए हम लोग ईथर का देख लेते हैं कैसे करते हैं। ईथर, अच्छा पहले एस्टर का देखते। एस्टर हो गया ना? वही थोड़ा सिमिलर है ना। अब ईथर्स क्या होते हैं देखो, एक इधर R1 रहता है, एक इधर R2 रहता है। तो इसमें दोनों में से जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसको पेरेंट एज्यूम कर लेंगे और दूसरा वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। क्योंकि हमने पढ़ रखा है ना, जो RO होता है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करता है। RO बिहेव्स एज ए सब्स्टिट्यूएंट ऑलवेज।
तो क्या करना है, इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको पेरेंट चेन कंसीडर कर लेना, और जो बचा हुआ पार्ट है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेगा। तो उसके लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स मिथॉक्सी यूज करते हैं, राइट। तो मैं लिखाया भी था आपको सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, बिकॉज आर ऑलवेज बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट, जिसके लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, मिथॉक्सी। तो इन दोनों में से जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको पेरेंट एज्यूम कर लेना एंड बाकी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, एंड फिर उसके लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स मिथॉक्सी यूज कर लेंगे। और ये जो पेरेंट चेन है उसका नॉर्मली जैसे नेमिंग करते थे वैसे नेमिंग कर देंगे, राइट। समझिए बात, राइट डाउन। ethers are always written as alkoxy alkane, तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए alkoxy और ये वाला पार्ट alkane, राइट। ethers are always written as alkoxy alkane, always written as alkoxy alkane, as OR is always considered as secondary prefix, as OR is always considered as secondary prefix, as OR is always considered as secondary prefix. Yes. Okay, for example, suppose I have CH3, यहाँ पे देखो इसमें 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 और 2 कार्बन है। ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, इसको पेरेंट चेन एज्यूम कर लेंगे। ये बन गया बचा हुआ सब्स्टिट्यूएंट, तो नेम क्या हो गया, इथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो बेसिकली ईथर का नेमिंग बहुत आसान है, बिकॉज छोटा वाला पार्ट बन जाता है सब्स्टिट्यूएंट और फिर बड़ा वाला पेरेंट चेन बन जाता है, और उसका नेमिंग कैसे करना हम लोग पढ़ ही चुके हैं एल्केन में, राइट। हाँ। ठीक है सर आगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी, देखिए जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर ऑफ 2 टाइप बेस्ड अपॉन कि वो कनेक्ट कहाँ पे होते हैं। फंक्शनल ग्रुप आर ऑफ 2 टाइप, एक तो होता है चेन टर्मिनेटिंग, तो चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ये हमेशा पेरेंट चेन के एंड पे लगते हैं, मतलब दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द टर्मिनल पोजीशन, तो उनको हम लोग बोल देते हैं चेन टर्मिनेटिंग। राइट डाउन, ऑलवेज प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन। ठीक है, तो ये लोग थोड़े दादा कैटेगरी के लोग होते हैं, जहां पे खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। ठीक है, ये चेन टर्मिनेटिंग होते हैं। COH हो गया, जैसे COX हो गया, CONH2 हो गया, CN हो गया, CHO हो गया, तो ये हमेशा चेन के एंड में लगते हैं, इसीलिए इनको हम लोग चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। टर्मिनेटिंग। दूसरे वाले होते हैं नॉन चेन टर्मिनेटिंग, मतलब उनको कहीं पे भी लगा दो, नॉन चेन टर्मिनेटिंग। नॉन चेन टर्मिनेटिंग, so they may be present at any position, be present
at any position. For example, SO3H, CO ketone, OH अल्कोहल, NH2। तो इनको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, आप देखिए, ये भी हमारा चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल COH, ये रिंग आपका एलिफैटिक रिंग भी हो सकता है और एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है। कोई भी ऐसी रिंग जो कि एरोमेटिक नहीं है उसको एलिफैटिक बोल देते हैं। एरोमेटिक क्या हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, दैट रिंग में भी एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक। तब हम लोग टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के लिए कुछ स्पेशल सेकेंडरी यूज करते हैं। इफ द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप इज directly connected to the ring, that ring may be either aliphatic or aromatic, then some special suffixes are used for the functional group। ठीक है, तो स्पेशल सफिक्सेस क्या है हम टेबल बना के लिखेंगे। पहले ये स्टेटमेंट लिख लेना। इफ चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप इज directly attached to ring, if chain terminating functional group is directly attached to ring, ब्रैकेट में लिख लेना, मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक। ब्रैकेट में लिख लेना मे बी एलिफैटिक और एरोमेटिक, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा, देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप, देन स्पेशल सफिक्स इज यूज्ड फॉर दीज फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो वो स्पेशल सफिक्सेस क्या हैं? विल राइट, विल मेक अ टेबल, serial number, functional group, यस सर। and secondary suffix। For example, I have carboxylic acid। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या सफिक्स यूज करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ही यूज करते हैं। नेक्स्ट सपोज आई हैव एस्टर, COO। इसके लिए हम लोग कार्बोजिलेट यूज करते हैं, कार्बोजिलेट। सपोज आई हैव एसिड हैलाइड, COX। तो इसके लिए हम लोग कार्बोनिल हैलाइड यूज करते हैं। कार्बोनिल हैलाइड यूज करते हैं। नेक्स्ट सपोज आई हैव अमाइड, तो इसके लिए हम लोग कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट आई हैव नाइट्राइल, तो इसके लिए हम लोग कार्बोनाइट्राइल यूज करते हैं, कार्बोनाइट्राइल।
नाइट्राइल। and suppose I have aldehyde। तो इसके लिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ओके, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, बस कार्ब और इन लोगों का सफिक्स लास्ट में। तो ये स्पेशल सफिक्सेस यूज करते हैं यदि हमारा टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। चलिए कुछ एग्जांपल लिखते हैं। लेट्स राइट डाउन सम एग्जांपल्स। तो हो गया है सर? कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। टर्मिनल वाले हो गए, यस। चलिए नेम लिखते हैं कुछ हम लोग। लेट्स से ये है, इसका नेम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। Let's suppose I have this will be cyclohexane carbaldehyde, cyclohexane carbaldehyde, next suppose I have this, so this will be cyclohexane carboxamide, yes sir, cyclohexane carboxamide, next suppose I have hello सर, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो फिर क्या करेंगे? आई मीन लाइक ये सब तो इजी है। बस तो मोर देन वन में एक को अगर प्रिंसिपल मानते हैं, दूसरा बन जाता है सेकेंडरी, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है। ये क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन, सॉरी साइक्लो, मोर देन वन में देखेंगे हम लोग, अभी परेशान गए हम। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। कार्बोनिल क्लोराइड, I have COOMe, ये एस्टर हो गया। मिथाइल, हम इसको कैसे लिखेंगे? मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। एंड देन एस्टर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बोजिलेट, राइट, कार्बोजिलेट। तो ये बेसिकली क्या है? दिस इज ए सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए इसको मैं पहले लिखा हूँ। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं ना। फंक्शनल ग्रुप तो ये है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट है ना। फंक्शनल ग्रुप तो बस इतना ही होता है। अब इसके ऊपर जो भी लगा है दैट इज सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम 2 डिग्री प्रीफिक्स यूज करते हैं ना। Now suppose I have aromatic ring, इसका नाम क्या रखते हैं हम लोग? बेंजीन लिखते हैं, करेक्ट। तो दिस विल बी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट suppose I have CHO, तो बेंजीन कार्बोल्डिहाइड हो जाएगा, बेंजीन कार्बोल्डिहाइड। नेक्स्ट सपोज I have CN, ये बेंजीन कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा,
कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सपोज आई हैव CONH2, तो क्या बन जाएगा बेंजीन कार्बोक्सामाइड। बेंजीन कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट सपोज आई हैव COCl, तो क्या हो जाएगा बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड। नेक्स्ट सपोज आई हैव COOMe, तो ये एमी सब्स्टिट्यूएंट है, तो बन जाएगा मिथाइल बेंजीन कार्बोजिलेट। मिथाइल बेंजीन कार्बोजिलेट। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके कॉपी कर लीजिए। ओके, तो टुडे विल स्टॉप हियर, कंटिन्यू नेक्स्ट।